Hello and welcome to my YouTube channel Learning Made Easy with Bhavisha. Today we will study chapter number 2, The Friendly Mongoose of your English Supplementary Reader's book, A Pact with the Sun. So let's get started. A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान, उनकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. उनके घर में नेवले का एक छोटा सा बच्चा भी था और उन्हें यह विश्वास था कि भविष्य में वही नेवला उनके बेटे का साथी और दोस्त बनेगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उनकी पत्नी दोनों ही बच्चे को मंगूस के साथ अकेले छोड़कर चले गए. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उनकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे. They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए, किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion. और यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथीदार बनेगा. His wife liked the idea. उनकी पत्नी को यह विचार बहुत पसंद आया. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम किसान अपने साथ नेवले के एक छोटे बच्चे को लेकर आया. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. यह नेवले का एक छोटा सा बच्चा है, पर बहुत ही जल्द यह बड़ा हो जाएगा, किसान की पत्नी ने कहा. He will be a friend of our son. वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. Both the baby and the mongoose grew. बच्चा और नेवला दोनों बड़े हो गए. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. 5 से 6 महीने में नेवला अपने पूर्ण रूप में विकसित हो चुका था. एक प्यारा जानवर जिसकी 2 चमकदार काली आंखें और झाड़ीदार पूंछ थी. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternatively. किसान का बेटा अभी पालने में छोटा बच्चा ही था, जो बारी बारी से सो रहा था और रो रहा था. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी ने बाजार जाने की इच्छा व्यक्त की. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया और पालने को हिलाया ताकि वो सो जाए. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose.
टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। बच्चा सो रहा है, उस पर नज़र रखना। सच कहूँ तो मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना है। You needn't be afraid, said the farmer. तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। नेवला एक दोस्ताना जानवर है। वो हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें पता है, किसान ने कहा। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. पत्नी बाजार चली गई और किसान भी घर पे कुछ काम ना होने की वजह से उसने बाहर जाने का निर्णय किया, कुछ ही दूर अपनी खेती बाड़ी के पास। और वहाँ उसे अपने कुछ दोस्त मिल गए और कुछ देर तक वो वहीं रुका रहा और घर पर नहीं गया। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी बाजार से घर लौटी एक बहुत ही भारी टोकरी के साथ। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. जब वह आ रही थी तो उसने नेवले को घर के दरवाजे के बाहर खड़े देखा। नेवले के चेहरे और पंजों पर खून था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. वह इस नतीजे पर पहुंची कि वह खून उसके बेटे का है और मंगूस ही दोषी है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी ने खरीदारी खत्म की और अपने घर वापस लौटी किराने के सामान से भरी टोकरी के साथ। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने नेवले को देखा जो बाहर बैठा हुआ था और नेवला ऐसे बाहर बैठा हुआ था कि जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. नेवले ने किसान की पत्नी का स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकलकर उसके सामने जाकर दौड़ पड़ा। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले को देखा और चिल्ला पड़ी। Blood, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. खून खून देखकर किसान की पत्नी रो पड़ी। नेवले के चेहरे और पंजों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. तुम दुष्ट जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है, वह हिंसक रूप से चिल्लाई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वो बदला लेने की भावना में अंधी हो गई थी
और अपनी पूरी ताकत के साथ खून से सने हुए नेवले पर उसने किराने का सामान रखने वाली भारी टोकरी को पटक दिया और बच्चे के पालने की तरफ अंदर भागी। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन फर्श पर एक काला सांप मरा पड़ा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. पल भर में उसे यह एहसास हो गया कि क्या हुआ था। वह भागती हुई नेवले को ढूंढने चली गई। Oh, you saved my child! You killed the snake! What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. ओ, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुमने सांप को मार डाला। मैंने यह क्या कर दिया? वह नेवले को छूकर रो पड़ी, जो मृत हो गया था और अभी भी उनकी रोने से अनजान था। किसान अभी भी उसकी किसान की पत्नी, जिसने जल्दबाजी और उग्रता में काम किया था, मृत नेवले को देर तक घूरती रही। तभी उसने बच्चे को रोते हुए सुना। उसने आंसू पोंछते हुए उसे खिलाने के लिए अंदर चली गई। थैंक यू। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट लेक्चर।